Good morning, dear all. I'm Rani Nikure, your teacher, and today now we discuss about the topic CSS display. Okay. Before that, we are learning about CSS introduction, then CSS background, CSS borders, such like that. We are using various displays attribute here. Okay. So now we are going one by one. What is exactly CSS display? CSS display is nothing but the way that you are present your data on your screen. Means in what manner you have to display your screen, right? So there are various properties that we are going to cover. First of all, CSS display inline, then CSS display block, then display inline block, and the last one is display none. Okay, so we are done these all attributes and all properties with the help of examiners. So now, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप जिस प्रोग्राम को भी रन करोगे तो वो एक फ़ोल्डर बनाओगे एंड देन फिर उसमें आपकी प्रोग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें लाइक फाइल्स, इमेजेस इकट्ठा रखोगे। तो वो कैसे? मैं आज एक आपके सामने जो है एक फ़ोल्डर ओपन कर रही हूँ और उसी में हम एक हमारा नया कोड करेंगे। ओके, तो सी हियर, फर्स्ट यू हैव टू गो in your VS Code editor. After that, okay, this file is for another program and now we have to create a new file, okay, with another folder. Then what you have to do, you have to just open that particular folder. उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बना के रखना पड़ेगा आपके पीसी में, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा है, सी हियर असेसमेंट में CSS, and see here the name of our folder, display and cursor. So I have to create a program in this folder. Then I'm select first to this folder, then I have to click on select folder. Okay, it's a simple step. So see here, at the top of our VS Code, our folder name is display cursors, right? And under this display folder, one file is, that is cursor.html. And now we have to create a one more new file. Then you have to click on new file. You have to write here the name of your program, just like I will write here display.html and then create new file where in display cursor folder create a file. See here, our display file is under the display cursor. Now we run program related to inline cursor. Before that, we have to get all this stuff. Okay, and just we are giving here title display because we are going to run our display program. Then we are going to our content. So see here, first of all, display inline. Inline means what? Your data will be present in single line like this. ओके, ये जैसे फर्स्ट लाइन यहाँ पे दिखाई है, तो जो ऑल कंटेंट जो रहेंगे वो एक सिंगल लाइन में आएंगे हॉरिजॉन्टली, दैट द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्प्ले इनलाइन। अब देखो, ये डिस्प्ले इनलाइन जो प्रॉपर्टी है उसके कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं नीचे, सच लाइक स्पैन है, देन ए फॉर एंकर टैग, देन एक EM टैग है, देन B टैग. These two tags are the we are using in for text editing, right, or for text formatting.
And this a tag, anchor tag, it is for providing a link to our data, and this is a span tag, so we can see one by one. So first of all, if we are going to run this program, suppose, see here, and copy this similar program from here, and we are putting a style tag in, always in head tag, right? So here we are also delete this body tag. Now our program is ready for run. And what is CSS property? It's a inline. If suppose I will remove this property or remove this all text, see here, सबसे पहले हम रन करेंगे ये प्रोग्राम विद माइक्रोसॉफ्ट एज. See, we are using a different p tag for printing this output, right? See here in our code we are using a 4 to 5 p tag, and p tag is not a inline elements. Means what? P tag requires the whole space of that particular screen. Means जहाँ पे आप p tag डिफाइन करोगे फिर उसमें एक वर्ड रहे, दो वर्ड रहे, या एनीथिंग, जस्ट लाइक इफ आई विल पुट हियर p tag फॉर एग्जांपल जस्ट empty. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक empty p tag लगा है, एंड देन आई विल अगेन रिपीट दैट p tag विद द वर्ड हेलो. ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है. सी, क्या हुआ, उसने हेलो जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया, राइट? इफ सपोज I will write here a single alphabet, that is A, then C. What is happened with this code? A प्रिंट हुआ, राइट? बट p टैग क्या करता है, अपनी एक स्पेस लेके चलेगा वो, जो पूरा हमारा स्क्रीन होगा उसका. देखो, जैसे ए टैग जहाँ पे ए प्रिंट हुआ है उसके बाद ये इतनी सारी जगह जो है वो बची है, लेकिन फिर भी p टैग ने क्या किया, उसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया. मीन्स व्हाट? p टैग इज नॉट अ इनलाइन एलिमेंट. इनलाइन एलिमेंट मीन्स व्हाट? जैसे ये CSS ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म हुआ, अगर ये p इनलाइन एलिमेंट होता तो इसके बाद का जो डेटा रहता वो इसके नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करता, देन नेक्स्ट p टैग को यहाँ पे प्रिंट करता. ओके, तो जैसा कि हमने बोला है कि हमारा स्पैन टैग जो है ये इनलाइन है. ठीक है, अब देखते हैं हम वो कैसे वर्क करता है. अभी अगर सेम इस प्रोग्राम को हम पहले ये डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी दे देते हैं कि वो कैसे रन करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड में यहाँ पे लिख लिया. सबसे पहले लिखेंगे हम p. वाई? बिकॉज हमें p सिलेक्टर को क्या करना है, स्टाइलिंग करनी है, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले एंड देन यूज किया इनलाइन प्रॉपर्टी. अब देखो अब क्या होता है. This is our output before using inline property, and now we are using here display inline property. So see here, आपका जो भी डेटा है वो एक लाइन में चला गया, राइट? अभी आप बोलोगे कि
यहाँ पे डेटा तो 2 लाइन में दिख रहा है, इनलाइन का मतलब तो एक सिंगल लाइन होता है। तो वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने स्क्रीन जो है वो एग्जिस्ट की है। अगर आप इसको जैसे-जैसा बड़ा करोगे तो देखो, वो जो हमारा पूरा डेटा था, जो पूरे टैग है हमारे एक लाइन में आ गए, राइट? विद द यूजिंग ऑफ इनलाइन टैग, ये होता है इनलाइन टैग। देन वी सी अबाउट द आवर नेक्स्ट टैग, ठीक है? इनलाइन का मतलब एक लाइन में। अब देखो, दूसरा है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है? ये इनलाइन ब्लॉक जो एलिमेंट है वो नियर बाय इनलाइन टैब के जैसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे इनलाइन एलिमेंट क्या करेगा, ये जो आपकी आउटपुट लाइन है, सी हियर, आपकी आउटपुट लाइन जो है वो एकदम क्या है, इस बॉर्डर के जस्ट नेक्स्ट जो है वो प्रिंट हुई है। और ये जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या करता है, अपनी एक हाइट एंड विड्थ जो है वो सेट करता है, जस्ट सी हियर। तो हम उसको अभी इनलाइन जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है उसको करेंगे हम इनलाइन ब्लॉक। सो सी, इसको सेव कर देंगे एंड देन या जस्ट सी हियर, जो ये लाइन प्रिंट हुई है दैट इज़ अ डिस्प्ले इनलाइन। अभी अगर हम इनलाइन ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं तो वो उसने क्या किया, सेम लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ भेजा। मतलब क्या, उसने अपनी एक हाइट और विड्थ जो है वो स्पेसिफाई कर ली है। ये होता है इनलाइन ब्लॉक। ओके, नाउ वी आर learn about the next property in display, and that is the display block. Okay, a display block means what? Block means before that, are you heard anywhere a word block? Block means what? A particular area, right? So here, just see here on this page. Here a given a border to this page, right? Just like it is a block for this all content. Such like uh, it is also a block for this code. And okay, so now we will see how a display block works. हम लेते हैं ये simple code for getting a output. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बॉडी में इसको किया प्रिंट, ठीक है? हमारे पास क्या है, h1, h1 में हमने एक टैग प्रिंट किया। देन सेकंड है हमारे पास स्पैन। जैसा कि मैंने बोला था कि स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि स्पैन कैसे वर्क करता है, ठीक है? देखो मैंने रिफ्रेश किया तो ये जो h1 है वो हमारा ऊपर आया, राइट? जैसे हमेशा आता है ये। और ये स्पैन टैग देखिए, ये जहाँ पे मैंने स्पैन लिखा है वहाँ क्या हुआ, जो पूरा डेटा जो है वो एक लाइन में आया। यहाँ पे हमने इनलाइन प्रॉपर्टी यूज़ की क्या? नहीं। अगर डेटा 1 बाय 1 लाइन में यानी पी टैग या फिर कोई दूसरे टैग में होता है, अगर उसको हमें एक लाइन में लाना है तो हमने यूज़ किया इनलाइन। लेकिन जो ये स्पैन टैग है वो ऑलरेडी इनलाइन टैग है। मतलब देखो हमने क्या किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पैन टैग यूज़ किए हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि समझने में इजी जाए। ओके, जस्ट सी हियर, हमारे पास कितने स्पैन टैग है? हमारे पास 3 स्पैन टैग है और एक जो है हेडिंग टैग है। अब according to definition of this span tag is a inline tag, that's why it's appear in single line, right? अगर मैं यहाँ पे सपोज दूसरा h1 ले रही हूँ, हम इसी को कॉपी करते हैं। सो
सी हियर आउटपुट डिस्प्ले टैग जो H1 टैग है वो क्या हुआ, वो 1 by 1 लाइन में प्रिंट हुआ लाइक P टैग, बट जितना भी डेटा हमने स्पैन टैग में डाला वो सिंगल लाइन में प्रिंट हुआ। अब जो डेटा मैंने ये सिंगल लाइन में डाला है, अगर मुझे ऐसे 1 by 1 प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे कि हमने स्पैन में क्या डाला, डिस्प्ले लर्न कुछ वेबसाइट, यहाँ तक के डेटा मुझे एक लाइन में चाहिए, देन सेकंड लाइन में ये सेकंड स्पैन चाहिए, और थर्ड लाइन में देन थर्ड स्पैन चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी, ठीक है। और किसे देंगे हम, पी को देंगे क्या, नो, वी आर यूजिंग हियर अ स्पैन, वाई, बिकॉज हमें किसको ब्लॉक प्रॉपर्टी लगानी है, स्पैन टैग को। अब देखो मैंने स्पैन टैग को डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया, और अब हम आउटपुट में रिफ्रेश करके देखते हैं। सी, अभी क्या हुआ, जो इनलाइन एलिमेंट था स्पैन टैग जिसने एक लाइन में सबको प्रिंट किया था, अब डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ, 1 by 1 जो एलिमेंट है वो प्रिंट हुआ हमारा, राइट। तो ये था हमारा डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन मीन्स व्हाट, हम यहाँ पे तीनों प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से एक देती हूँ और मैं प्रॉपर्टी लगाती हूँ। सपोज H1 को देते हैं डिस्प्ले इनलाइन, ओके, देन इसको कर देते हैं P टैग, अभी हमने क्या किया, तीन जो है डिफरेंट सिलेक्टर का यूज़ किया। अभी हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा P, और हम इसको देते हैं सपोज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब देखो क्या होता है, क्या हुआ, हमने जो इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी दी थी H1 को, तो वो लाइन के नीचे आ गया, राइट। फिर हमने सेकंड को दी पी टैग को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, यानी उसने क्या किया, अबव एंड बिलो एक डिस्टेंस मेंटेन किया। एंड थर्ड जो स्पैन एलिमेंट ऑलरेडी इनलाइन एलिमेंट था, उसको क्या किया हमने, डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब वो एक ब्लॉक की तरह 1 by 1 सीक्वेंस में उसने अपना आउटपुट जो है वो प्रिंट किया, ठीक है। अब देखो स्पैन को हम जो है वो एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे, सी हियर, यहाँ पे हमने 3 स्पैन लिए हैं, राइट। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन सब स्पैन को कमेंट करके रखती हूँ, ठीक है, और ये जो पी टैग है उसका जो ये एलिमेंट है मैं उसको देती हूँ स्पैन सी, ठीक है। सिर्फ एलिमेंट वर्ड जो है एलिमेंट्स हम लिखते हैं स्पैन टैग के अंदर, राइट। और अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, देखो व्हाट विल द आउट, कुछ चेंजेस हुए क्या, नो, हमारा H1 टैग और पी टैग जो है वो प्रिंट हुआ। अब देखो चेंजेस, हम सेम स्पैन टैग को एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोज मैं उसको कलर लगा रही हूँ, कलर इक्वल्स टू सपोज ब्राउन, ठीक है। मैंने कहाँ लगाया स्पैन, सॉरी कहाँ लगाया प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी स्पैन के अंदर, और ये स्पैन कौन सा है, ये वाला एलिमेंट्स वाला, एलिमेंट्स वर्ड जो है वो स्पैन में है। सो सी हियर क्या हुआ, यहाँ का जो एलिमेंट्स वर्ड है वो एक अलग कलर में आ गया, और बाकी के जो वर्ड्स है वो एक दूसरे कलर में आ गए। मतलब क्या, आप अगर
अपने पूरे डेटा में एक सेपरेट कुछ वर्ड अलग दिखाना चाहते हो तो आप एक स्पैन का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक प्रॉपर्टी लगा के देखती हूँ इसको। सपोज बैकग्राउंड कलर लेते हैं हम एक्वा। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है। उसने किसको लिया, मतलब जितना हमने स्पैन में डेटा डिफाइन किया था उस सारे को पर्टिकुलर सिर्फ उसी डेटा को उसने वो प्रॉपर्टी अप्लाई की। अगर हम दूसरा सिलेक्टर यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल H1 या फिर P, यहाँ पे लिख के देखते हैं। ठीक है, अगर मैं ये सेम प्रॉपर्टी H1 के लिए लिख रही हूँ तो देखो क्या हो रहा है। उसने जितना H1 टैग था वो पूरा जो है वो कलर कर लिया, बट स्पैन ने क्या किया, उसके अंदर जो पर्टिकुलर वर्ड था एलिमेंट सिर्फ उसी को किया। सो दिस इज द डिफरेंस between span tag and all remaining tag. Okay, now just a one concept is remaining, and that is, if I write here in the body tag, I have to use the body selector, and I will use just a display none. Okay, see here, display none. Then I am refresh this. What will happen? अगर आप बॉडी टैग को डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी लगाते हो तो आपका जो भी आउटर डिस्प्ले होगा वो ब्लैंक दिखाई देगा। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ डिस्प्ले नन, राइट। अभी आया आपको सब समझ में? डिस्प्ले नन मीन्स व्हाट, कि जो हमारा डिस्प्ले दिखाना है अगर मैं उसको नन करती हूँ, हमने किसको नन किया, बॉडी को। बॉडी को क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर जो मुझे पूरा डेटा था, बॉडी में क्या है हमारे H1 टैग और P1 टैग, तो डिस्प्ले नन करने के बाद जो है पूरी बॉडी जो है वो ब्लैंक हो गई। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ न लगाते हुए सपोज मैं डिस्प्ले नन यहाँ पे लगा रही हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे लगा लिया डिस्प्ले नन। अब देखते हैं वर्क होता है क्या नहीं। देखो वर्क हुआ हमारा डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी। हमने कहाँ लगाया अभी, H1 में, और H1 जो था यानी जो हमारा हेडिंग था वो गायब है और बाकी का जो P एलिमेंट है वो हमें शो हो रहा है, राइट। मतलब क्या, जहाँ पे भी आप डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी लगाओगे वो डेटा नन हो जाएगा आपके ये पर्टिकुलर डिस्प्ले पे। मतलब क्या, आपके प्रोग्राम में तो वो इधर लिखा है आपने, लेकिन आपके जो आउटर पेज है, जो आउटपुट वाला पेज है उसमें शो नहीं हो रहा। तो ये थी हमारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इनलाइन, देन सेकंड वन इज इनलाइन ब्लॉक, एंड थर्ड वन इज ब्लॉक, एंड द फोर्थ वन इज डिस्प्ले नन। ठीक है, तो हमारी डिस्प्ले की ऑल प्रॉपर्टीज जो है हमने यूज कर ली है यहाँ पे। इसके बाद जो है आपके लिए असेसमेंट दिया गया है यहाँ पे। ये जो रन इन प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले रन इन प्रॉपर्टी, ये आउटडेट हो गई है तो हम फिलहाल इसका यूज़ नहीं कर रहे। ओके, सो ये आपको हम स्किप कर रहे हैं रन इन प्रॉपर्टी। देन सी हियर, हमने डिस्प्ले नन भी यूज़ कर लिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन, द नन वैल्यू टोटली रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम योर पेज, राइट। जिसे जिसे हमने नन वैल्यू दिया वो हमारा डेटा रिमूव हो गया फ्रॉम आवर आउटर पेज। एंड आफ्टर दैट असेसमेंट वन, आपको क्या करना है, कोड लिखना है एंड हाइड योर नेम बाय यूजिंग CSS नन प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, H1 में लिखा है माई नेम इज।
ओके, और इसको क्या कर दिया है, नेम को हाइड। तो आप ये करके देखो। और सेकंड प्रोग्राम है जो आपको क्या प्रिंट करना है, ये जो लिस्ट दी गई है नीचे, जो हम लिस्टिंग कैसे करते हैं, विद द यूज ऑफ ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। तो ये पर्टिकुलर लिस्ट को जो है वो डिस्प्ले इनलाइन कर दिया है। इनलाइन के बाद वो कैसा दिखेगा, ऐसे। तो ये भी आपको करके देखना है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन आस्क मी, ओके, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई दिस। चलो, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, जो हमारा चैप्टर रहेगा CSS कर्सर्स। ओके।